بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر سب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ڈائجسٹ کے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں نے کس ڈائجسٹ سے ناول چوز کیا ہے۔ تو جی، خواتین ڈائجسٹ، یہ سالگرہ نمبر تھا اپریل 1999۔ بہت خوبصورت سی سٹوری ہے، بڑی ہی پیاری سٹوری ہے۔ تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں سر ورک پر۔ ہاں جی، دیکھیے کتنی پیاری دو شیزہ ہیں یہ، ماشاء اللہ۔ 1999 میں کچھ ایسا فیشن ان ہوتا تھا۔ یہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ان کا ویلویٹ کا سوٹ ہے اس کے اوپر آئی تھنک ایمبرائڈری ہے یا کچھ ہے۔ ہاں، جیولری سیٹ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ آج کل پھر اسی سٹائل کی جیولری جو ہے وہ ان ہو رہی ہے۔ انڈیا میں تو بڑی ان ہے، بڑی خوبصورت خوبصورت جیولری دیکھنے کو ملتی ہے۔ میرے جو انڈیا کے لسنرز ہیں وہ بتائیں مجھے کمنٹ سیکشن میں، اس طرح کی جیولری چل رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ تو بہت اس طرح کی ایڈز آتی ہیں انڈیا سے۔ تو یہ اچھا، اس کے اوپر کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، خواتین اور دوشیزاؤں کے لیے اپنی طرز کا پہلا ماہ نامہ، خواتین ڈائجسٹ، سالگرہ نمبر اپریل 99۔ اچھا، اس کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایوننگ پریمس آئل۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ کسی نے نا آئل کا نام یاد کرنے کے لیے نا ادھر لکھ دیا ہے کہ چلو خواتین ڈائجسٹ کے ٹائٹل کے اوپر لکھ دوں، بھولے گا نہیں تو جناب ہم کیا پوری دنیا پڑھ رہی ہوگی ایوننگ پریمس آئل۔ چلیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، تھوڑی سی چٹ چیٹ ہونی چاہیے۔ اور لپسٹک کا کلر بھی بہت خوبصورت ہے، پھر نیل پالش کا کلر بھی بہت اچھا ہے اچھا جی، چلیے اب نا آج میں سب سے پہلے نا آپ سب کے نا کمنٹس پڑھوں گی۔ سب کا بہت بہت شکریہ، جیسے جیسے میں کہتی ہوں آپ لوگ کمنٹ ضرور کرتے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ، بہت بہت زیادہ شکریہ۔ کافی دن سے آپ لوگوں کے کمنٹس جو تھے وہ پینڈنگ میں تھے، بہت کم لوگوں کو میں نے رپلائی دیا، ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ نا فٹافٹ سے میرا بس دل ہوتا ہے میں فٹافٹ سے کوئی اچھا سا ناول نکالوں، ریکارڈ کروں آپ سب کے لیے اور اس کو اپلوڈ کروں۔ تو اسی چکر میں نا بہت معذرت کے ساتھ اسی چکر میں نا میں کمنٹس لیٹ کر دیتی ہوں۔ بعض اوقات ناول بہت لمبے ہوتے ہیں تو کمنٹس کا ٹائم نہیں ملتا، اور بعض اوقات ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس نا کہ میں فٹافٹ سے کمنٹس نکالوں، پھر ان کو پڑھوں، پھر ناول سٹارٹ کروں۔ تو آج میں نے پہلے سے ہی نا یہ کر کے رکھا ہوا تھا کہ نہیں، میں نے آج یہ لازمی پڑھنے ہے۔ اور آج جو ناول ہے وہ بھی تھوڑا سا شارٹ ہے، ناول کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، پہلے نا میں آپ کو کمنٹ سیکشن کی طرف لے کے چلتی ہوں۔ اچھا جی، یہ ہے جی لیٹسٹ کمنٹس۔ ایج ڈفرینس بیسڈ پہ جو ناول تھا میرا، بہت پیارا چھوٹا سا ناول تھا، عمار احمد سپر، بہت شکریہ مائی سانگ۔ اس طرح خواتین اور شوہ ڈائجسٹ کے ناول اپلوڈ کریں، سب کو پسند آئیں گے، تھینکس، بہت شکریہ عائشہ۔ میں پہلے بھی پڑھتی تھی لیکن آپ کی پرزور فرمائش پہ میں نے پھر نا بس ٹرین پکڑ لی کہ نہیں، ابھی جو بھی پڑھنے ہیں وہ میں نے شوہ اور اس سے پڑھنے ہیں۔ بیچ بیچ میں تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتی ہوں، آنچل اور کرن کے پڑھتی ہوں، لیکن زیادہ تر اب میرے نا خواتین اور شوہ پہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ تو پھر ہیں جی مائی سانگ عائشہ، نائس ناول، موسٹ بیوٹیفل سپر ناول، بہت شکریہ۔ مریم، ویری بیوٹیفل ناول، بہت شکریہ مریم۔ اسما عدیل، سو کیوٹ، نائس ناول، بہت شکریہ اسما جی۔ مسز عامر، بہت مزہ آیا۔ مسز عامر گم ہو جاتی ہیں، بہت لیٹ اپنی جو ہے وہ حاضری لگاتی ہیں، لیکن لگاتی ضرور ہے۔ مبشرہ کاشف، ویری گڈ، بہت شکریہ مبشرہ۔ شمع پروین، فنی بٹ سویٹ سٹوری، جی بہت مزے کی سٹوری تھی دونوں بہنوں کی۔ فرزانہ چودھری، میں نے یہ فرسٹ ایئر میں پڑھی تھی، او واو، اس کا مطلب ہے آپ کو یہ یاد تھی فرزانہ۔ یہ ہیں جی فاریہ شیخ، ہاں ہاں ہاں، آپ کی ہنسی مجھے بھی آ گئی تھی یار، کیا کروں، بعض اوقات اتنے برجستہ جملے، اتنے مزے کی ان کی وہ نوک جھونک ہوتی ہے، اتنی کوشش کرتی ہوں کہ میں نا ہنسی روکوں لیکن نا وہ پڑھتے پڑھتے ایک دم سے نا وہ فلو میں جب آتی ہوں تو میری ہنسی نہیں رک رہی ہوتی۔ آپ نے یقیناً وہ رات والا ناول سنا ہوگا نا،
मोहब्बत हम सफ़र मेरी, वो भी इतना कोई मज़े का था ना, 2 घंटे का वो नावल था। और आप यकीन नहीं करोगी, मैंने बहुत दफ़ा रोक रोक के अपनी हंसी रोकी है। अभी भी मुझे वो सोच सोच के आ रही है। तो वो भी बहुत मज़े का नावल था। अच्छा जी, आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर दिस नावल। मज़े की स्टोरी होती है आपकी। बहुत शुक्रिया फारिया। सरदार महमूद, सुपर एंड गुड नावल। बहुत शुक्रिया सरदार महमूद। मोहित नाइमा, ज़बरदस्त, बहुत पसंद आया। जज़ाकल्ला जी कि आपको ये बहुत पसंद आया। अम्मार अहमद, सुपर नावल, शुक्रिया। अम्मार अहमद का ये फिर वो पागल सी दीवानी सी पे था एक कमेंट, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अम्मार। रूबी शेख, नाइस नावल, थैंक यू। अम्मार अहमद, लवली, थैंक यू सो मच अम्मार। फैसल खान, इंटरेस्टिंग नावल, बहुत शुक्रिया फैसल। अस्मा दिल, वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल नावल, जज़ाकल्ला। फरजाना चौधरी, सुपर। वैसे बाथरूम आइडियाज़, हाँ तो और क्या फरजाना, आप भी कभी ट्राई करिएगा। कसम से, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है इस रिसाले में ना, कि जितने अच्छे आइडियाज़ आपको वॉशरूम में आते हैं और कहीं नहीं आएंगे। मैं वैसे इस चीज़ पे एग्री करती हूँ। आप सब लोग एग्री करते हैं कि नहीं, वो ज़रूर मुझे बताइएगा। मिसेस आमिर, आई रियली एंजॉयड, बहुत मज़े का था। इन कज़न की आपस में बनती नहीं थी, नोक झोंक इतनी मज़े की थी इनकी। जो टिकटॉकर वाला नावल था उसके वैसे ना व्यूज़ कम है, काइंडली थोड़े से व्यूज़ बढ़ाएं, उसका जो रेट है वो थोड़ा सा अप करें। मुबशरा काशिफ, वेरी वेरी गुड, बहुत शुक्रिया मुबशरा। आयशा है जी, माई सॉन्ग, बहुत खूबसूरत नावल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आयशा। ऑसम, सुपर नावल, थैंक्स फारिया शेख, बहुत शुक्रिया प्यारी बहन, जज़ाकल्ला खैरन कसीरा। अच्छा जी, ये हैं मुदस्सिरा शाहीन। पाकीज़ा अंचल में एक नावल 2008 सिलसिलेवार नावल था, नाम याद नहीं, पर दो बहन दो माँ से थीं, पर देखने में एक जैसी। का एक हीरो का नाम हमज़ा था, एक हीरोइन का नाम मिनाल। मिनाल था, या हम ये हमज़ा ने दूसरी हीरोइन का मामूजाद था और उसे शादी करना चाहता था। इस नावल को रीड करें प्लीज़। इंशाल्लाह जी, मैं कोशिश करूँगी आपकी ये फरमाइश ज़रूर पूरी करूँ। पाकीज़ा आंचल का सबसे पहले तो मुझे ये नावल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसका आपने नाम नहीं लिखा हुआ, तो करेक्टर्स नेम से जो है ना वो नाम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है किसी भी नावल का। कोशिश मेरी पूरी होगी। तो अगर तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा तो मेरी तरफ से भरपूर कोशिश होगी कि उसको ज़रूर पढ़ के सुनाऊँ। तो अल्लाह करे मिल जाए तो आपकी फरमाइश पूरी कर दूँ। बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। फारिया शेख, लवली नावल विद ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक्स, येस इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी, इट्स टू मच इंटरेस्टिंग नावल। हाँ जी फारिया, बहुत शुक्रिया। आयशा का है जी, वेरी नाइस नावल, थैंक यू सो मच आयशा। रूबी शेख, इंटरेस्टिंग नावल, थैंक यू रूबी। शमा परवीन, एक्सीलेंट स्टोरी, बहुत शुक्रिया शमा जी। माई सॉन्ग्स, आयशा, वेरी नाइस नावल, बहुत शुक्रिया। अस्मा दिल, ब्यूटीफुल नावल। फारिया शेख, लवली नावल विद ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक्स, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। रूबी शेख, नाइस नावल। अम्मार अहमद, वेरी इंटरेस्टिंग नावल, थैंक यू सो मच अम्मार। फिर है अम्मार अहमद, ज़बरदस्त नावल, ये इनका था हरफ ताज़ा की कोई एक नई खुशबू। ये नावल भी बहुत मज़े का था। इन्होंने उस पर कमेंट किया, काफ़ी पुराना नावल, मैंने ये पढ़ा था मेरा ख्याल है 2-3 माह पहले शायद ये मैंने अपलोड किया था। अम्मार अहमद, औसम, बहुत शुक्रिया अम्मार। चलें, आपको जब भी टाइम मिला आप पुराने नावल पढ़ रहे हैं, मुझे दिली खुशी होती है। आप सब लोग जब इतना प्यार इतना सपोर्ट करते हैं मुझे। शमा परवीन, बेहद खूबसूरत नावल था, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शमा जी आपकी मोहब्बतों का। फिर हैं जी शमा परवीन, वेरी ब्यूटीफुल नावल, बहुत शुक्रिया इस पे भी। सरदार महमूद, नाइस नावल, बहुत शुक्रिया सरदार महमूद। रमशा, नाइस नावल, थैंक यू रमशा। अस्मा अदील, पाक आर्मी जिंदाबाद, ब्यूटीफुल नावल, जी बिल्कुल, पाक आर्मी जिंदाबाद। नावल वाकई बहुत अच्छा था, आर्मी बेस पे था। सबाहत नदीम, नाइस। फारिया शेख, मज़े की स्टोरी थी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फारिया। मुबशरा काशिफ, वेरी वेरी गुड। सबाहत नदीम,
अमेजिंग नावल है। योर रीडिंग स्टाइल ऑसम। थैंक यू सो मच आप सबका, जिन्होंने कमेंट्स किए, जिन्होंने लाइक किया, जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए, उन सबका भी बहुत 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 शुक्रिया। आप सबके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, आपकी सपोर्ट का। तो ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहें। आप यकीन जानिए, मेरी ना मेहनत वसूल हो जाती है। हालांकि ये कोई वो काम नहीं है, आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे है नावल पढ़ने का चस्का। तो मैं कहती हूँ कि चलो अपने इस चस्के को दूसरी दूसरी ज़ुबानों तक मुंतकिल करूँ। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि अच्छी सी अच्छी चीज़ आपके सामने पेश की जाए। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कमेंट्स भी मैंने आप सबके पढ़ लिए हैं, तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। हाँ जी, तो टाइटल के ऊपर भी हमने गौर व खोज कर लिया था। तो अब बढ़ते हैं नावल के नाम की तरफ। पहले मैं बता दूं थोड़ी सी स्टोरी। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो ना शादी से डरती है। मतलब शादी से क्या, एक शादी के रिलेशन से डरती है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स में जो रिलेशन देखा होता है, बाप उसका वो मतलब बुरी सोहबत में बैठ के क्या उसे बोलते हैं, नशे का आदी हो जाता है। फिर उसी नशे में ही वो उसकी माँ को ना बेच देता है। माँ जो है वो सुसाइड कर लेती है। तो वो सारी चीज़ें उसके ना जहन में होती हैं, तो इसलिए वो ना शादी के रिलेशंस की वजह से ना शादी नहीं करना चाहती। ज़बरदस्ती मंगनी तो हो जाती है उसकी। तो उसी पे बेस्ड है। खाला उसको अपने घर ले आती हैं, बेटी बना के रखती हैं। खाला के दो बेटे होते हैं, बहुत सब प्यार करते हैं। हीरो का करैक्टर भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है। शॉर्ट नावल है लेकिन बहुत प्यारा नावल है। मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे इस नावल पे भी बहुत सपोर्ट करेंगे। तो ये जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, अप्रैल 99 के शुमारी ख़वातीन डाइजेस्ट में आया था। नावल का नाम है मलाल कोई हो, फरजाना इस्माइल। आपको पता है फरजाना इस्माइल के बहुत मज़े के नावल होते हैं, बहुत अच्छे नावल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मलाल कोई हो। जब सारी गाड़ी टूट फूट कर गिर जाएगी ना, तब दूसरी लेंगे ये लोग। गाड़ी में बैठते ही खाला अम्मी का पारा हाई हो गया था उस वक्त, जब उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और हैंडल उनके हाथ में आ गया। आपको पता तो है आजकल भाई और अब्बू कितने मसरूफ़ हैं। अशर ने जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ के गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की थी, मगर वाहरी किस्मत, इंजन सिर्फ घुर्रा कर खामोश हो गया, स्टार्ट ना हुआ। हाँ, एक को वज़ीर आज़म और दूसरे को सदर का ओहदा जो मिल गया है, मसरूफ़ क्यों ना होंगे। खाला अम्मी की आवाज़ गहरे तंज में डूबी हुई थी। फ्रंट सीट पर बैठी ऊर्ज ने मुस्कुराहट दबाकर बाहर देखना शुरू कर दिया और अशर ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी। कभी टायर पंक्चर है, कभी हवा नहीं है, तमाशा बनाया हुआ है इन सब ने। क्यों सर में दर्द कर रहे हो, शोर मचा मचा कर? ये स्टार्ट नहीं होगी। ओ जाओ, तुम अशर को बुला कर लाओ, देख लेगा कहाँ खराबी है, और मेरा चश्मा भी लेती है ना, तख्त पर पड़ा है। भाई बंद करो ये घरर घरर। ऊज से बात करते करते वो फिर से झिल्ला गई अशर पर। जी अच्छा खालामी। उसकी बेजारियत यकलख्त ख़त्म हो गई थी और वो फ़ौरन ही बाहर निकल आई थी। वैसे भी इंजन की खंखार ने हलक में गोया खराशें सी डाल दी थी। अल्लाह करे इनसे भी उनसे भी स्टार्ट ना हो। कतई दिल नहीं चाह रहा था बाज़ार जाने को। अच्छा खासा सोने जा रही थी कि किचन साफ़ करके यकदम खाला अम्मी को शॉपिंग याद आ गई। अभी भी गाड़ी ठीक ना होने की दुआ करती वो खुशी खुशी उतर कर उस मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाने चल दी, जो जुमा पढ़कर और दोपहर का खाना नोश फरमाकर खाला अम्मी के तख्त पर महबीस रहा था। बरामदे में पड़े तख्त पर वो गोल तकिया लगाए बाएं तरफ करवट लिया गालिबन सो रहा था। सफ़ेद कुर्ते व शलवार में मलबूस इंतहाई नफीस जाली वाली टोपी मुंह पर रखी हुई थी। किस कदर सुकून है इनकी ज़िंदगी में। उसे इस कदर बेफिक्री से सोता पाकर उसका हसद अंगड़ाई लेकर जाग पड़ा। बेख्तियारी झुककर ज़ोर से उसके पाँव का अंगूठा हिलाया था। क्या बात है, इंतहाई नागवारी से कहा गया था, और फ़ौरन ही मुँह पर से टोपी हट गई थी। आप जाग रहे थे? उसके फौरी रद्द अमल पर वो लम्हा भर को घबराई थी। कुछ भी बोले बगैर वो कदरे सुर्ख आँखें लिए उसे देखता रहा। खाला मैं बुला रही हैं आपको। वो झुककर तकिए के आसपास चश्मा तलाश करने लगी। अच्छा क्यों? वो कसरमंदी से उठकर बैठा। धक्का लगवाना है? उसने मुस्कुराकर चश्मा उठाया और पलट गई। किसको? टोपी कस के सर पर जमाई थी। पुरानी मोटर को। वो बरामदा क्रॉस कर गई थी। उफ, मारे गए, नींद, सारी नींद भग से उड़ गई थी।
पुरानी गाड़ी अब कुछ ज़्यादा ही तंग करने लगी थी। आने जाने में खासी परेशानी थी। अम्मी काफ़ी दिन से उन दोनों बाप बेटी से कह रही थी कि नई गाड़ी के लिए, मगर अक्सर अब्बू अपनी मसरूफियत का बहाना बनाकर कभी ये अपने ऑफिस के काम गिनवाकर मस्ता टालते चले जा रहे थे। बच्चों जी आज खैर नहीं है, उसे बाहर जाते हुए हल्का सा खौफ आ रहा था। कल हफ्ता है यानी ऑफ डे, कल ही ये काम कर लिया जाए तो अच्छा है। पुख्ता इरादा करके वो जब बाहर आया तो अशर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश में खुद भी खासा थक चुका था। ऊपर से खाला अम्मी की बातें उसे और गर्मा रही थी। उस गाड़ी के पास खड़ी इधर उधर देख रही थी। तुम हटो अशर। कुछ देर बाद उसने भाई के सुर्ख चेहरे और अम्मी की बातों पर गौर किया, जिनके हर जुमले में एक तंज पोशीदा था। फिर अशर को पेशकश की तो वो जैसे मुंतजिर ही था, रस्मन भी इनकार किए बगैर ड्राइविंग सीट छोड़ दी। जाना कहाँ है अम्मी? महज इत्तफाक था कि उसकी दूसरी कोशिश में ही मुआवजाती तौर पर गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। जाना तो बाजार था, मगर ये नामुराद एक जगह ठुस हो गई तो रात ही हो जाएगी स्टार्ट करते करते। अपने मामू की तरफ ले चलो, भाभी से भी कुछ काम था मुझे। शॉपिंग का इरादा तक करके वो अशर से कह रही थी। उधर उससे खुदा का शुक्र अदा किया था मामू के यहाँ तो जाया जा सकता था कि वहाँ माँ मापी और अनम से उसकी बात बनती थी। तुम क्यों बाहर खड़ी हो? उसने गर्दन निकाल कर उसे देखा था, फिर फ्रंट डोर खोल दिया। वो कुछ भी बोले बगैर घूमकर फ्रंट डोर की तरफ आ गई। लॉक ना लगाना, वो उसे हिदायत दे रहा था। दरवाज़ा तो बंद कर लूँ? यक बयक वो झिल्ला आ गई थी। चलो कर लो। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? इस पे बैठकर किसका मूड खुशगवार रह सकता है? वो हल्के से बड़बड़ाई थी, मगर उससे सुन लिया था। गर्दन घुमाकर उसे घूरा, मगर बोला कुछ नहीं। ये गाड़ी आखिर आएगी कब? अम्मी का लहजा खासा नाखुशगवार था। कल छुट्टी है अम्मीजान, मैं और अशर कल ही जाएंगे अब्बू के साथ। देखती हूँ कल तुम्हें और तुम्हारे बाप को। रोज़ ही सुनती हूँ कल, ना जाने कौन सी कल है जो ये आर नहीं चुकती। दिल तो चाहता है पेट्रोल छिड़कर आग लगा दो इस नामुराद को। वो बेहद गुस्से में मालूम होती थी। ऊँच को हंसी आने लगी। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? गर्दन मोड़कर उसे घूरा था। मैं कब हंसी हूँ? तो और कौन हंसेगा फिर आप पर? फौरन ही लब भींच कर हंसी रुकी थी। अरे महामापी और अनम खड़ी हैं। अशरफ भाई गाड़ी रोके रोके। वो हाथ भी दे रही हैं। वो कह रही थी उसकी तरफ रुकिए। अरे रोके। उसने तो जैसे सुना ही नहीं था, बहरा हो गया था। खाला में कहीं इनसे क्या सोचेंगी दोनों। वो चिंचिलाकर अम्मी की तरफ पलटी थी। रोकते क्यों नहीं हो तुम? बच्चियां खड़ी हैं, शाम का वक्त है। अम्मी भी चढ़ दौड़ी। रोक तो रहा हूँ, ब्रेक नहीं लग रहा। हर चीज़ तो ख़राब है इस गाड़ी नुमा चीज़ में। हकीकतन बुरी तरह तपा था वो उस वक्त। देख उसने भी लिया था अपनी मामूजादियों को, मगर गाड़ी के ब्रेक्स में भी कुछ गड़बड़ थे। रोकते रोकते भी अच्छे खासे फासले पर रोकने में कामयाब हो सका था वो। तुम बुला कर ले आओ, खाला अम्मी से कह रही थी। आप भी चले, वो अशर से कह रही थी। पता था दोनों पक्की पक्की नाराज़ हो चुकी होंगी, मुमकिन है आने ही से इनकार कर दे। खुद जाओ, साफ इनकार कर दिया था उसने। तो अनकरहन वो बाहर निकली थी। वो वाकई नाराज़ हो चुकी थी। वो मुश्किल तमाम सारी वजह बताकर उन्हें मनाकर गाड़ी तक लाई थी। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, देख तो लिया था तुम दोनों को, खाला कह रही थी। बताया है अभी उजने वो अशर को और खाला को सलाम करती खाला के साथ ही बैठ गई थी हंसती हुई। तुम्हारी तरफ ही जा रहे थे हम लोग, तुम लोग बाजार से आ रही हो। प्रोग्राम तो मेरा और उज का भी यही था, मगर खुदा गरत करे इस गाड़ी को। खाला गाड़ी की शान में रद्बुल लिसान हो गई थी और साथ में उछ लुक में देती जा रही थी। वो बुरा सा मुंह बनाकर सामने मतवज्जा हो गया। मामू की गली शुरू हो गई है, अब ब्रेक लगाना शुरू कर दें, घर तक तो रुक ही जाएगी। मोड़ मुड़ते ही उछ ने बड़ी शरारत से उसे मुखातिब किया था और उन लोगों की हंसी निकल गई थी। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। आसमानी कॉटन के सूट में हंसती हुई वो बेहद दिलकश लग रही थी। न जाने क्यों बजाय गुस्सा होने के वो खुद भी हंस दिया था उसे देखकर। गेट पर कब से बेल हो रही थी। थोड़ी देर तक उसने इंतज़ार किया कि शायद अशर खोल दे। खाला अम्मी तो खालू के पास थी, क्योंकि पिछले दिनों उनके पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, लिहाजा आजकल मेहमानों की आमदरफ्त कुछ ज़्यादा ही थी। वो भी कानों में गोया तेल दिए बैठा था। वो जलती भूनती किचन से निकलकर गेट खोलने चल दी। अभी खालू अब्बू के लिए यखनी भी बनाना थी और दोपहर के लिए रोटियां भी डालनी थी। पता नहीं कौन मशवरा देता है कि भरी दोपहर में दूसरों के घर जाकर उन्हें तंग करो। बड़बड़ा कर गेट खोल दिया था। सामने ही खालू की कज़न और उनकी सास खड़ी थी। बादल खासा उन्हें सलाम किया, बाछें फैलाकर, और अंदर ले आई खालू के कमरे में और ख़ुद वापस किचन की तरफ चल दी। अब यकीनन खाला अम्मी की आवाज़ आएगी चाय या ठंडा बनाने के लिए। पिछले 6-7 दिनों में इतनी दफ़ा ये मशरूबात बनाकर मेहमानों को पेश कर चुकी थी कि अब तबीयत उकता सी गई थी। आज तो अच्छी खासी गर्मी थी, या मेहमानों को देखकर उसे चिढ़ हो गई थी। बहरहाल उसने यक्स ख्वाहिश बनाया और मेहमानों की तवज्जो को चल दी।
ना पूछे भाईजान कितनी तकलीफ़ उठाई उन्होंने। सर्जन ने तो पूरा पेट ही चीर कर रख दिया था और कोई इतना बड़ा पत्थर निकला था उनके पित्ते से। हाथ के इशारे से पित्ते से निकलने वाली पत्थरी का जो साइज़ उन्होंने बताया वो कमरे में मौजूद अशर को भी हैरान कर गया था और अंदर आती ऊज को भी। किस ऑपरेशन की बात कर रही हैं आंटी? अशर मुंह खोले उन्हें देख रहा था। पित्ते के ऑपरेशन की वो ज़रा की ज़रा खफा नज़र आई थी। अंकल के पित्ते की बात कर रही हैं? मुस्कुराहट दबाए वो अटकता हुआ कह रहा था। वही तो, क्या ऊँट के पित्ते की बात कर रही हूँ? आपकी आंटी की सास नाराज़ होकर बोली थी। साइज़ तो कुछ ऐसा ही है, हमारे अब्बू के पित्ते में तो बस चने के दाने के बराबर 3 ही पत्थर निकले। वो बड़ी मायूसी से कह रहा था, खालू अब्बू को देखता हुआ। बकवास मत करो ज़्यादा। खाला अम्मी ने भी बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट छुपाई थी, जबकि अब्बू हल्का सा मुस्कुराए थे। इसका मतलब है हमारे अब्बू के पित्ते से जो 3 नन्हे मुन्ने पत्थर निकले हैं, उसके मुकाबले में अंकल के पित्ते से तो चट्टान निकल आई। बहरहाल ऊज आपा, तुम आंटी को वो शीशी तो दिखाओ। वो बड़ी संजीदगी से ऊज से मुखातिब हुआ था। कौन सी? ऊज ने मुस्कुराहट जब्त करके उसे देखा था। जिसमें अब्बू जान के पित्ते से निकलने वाली निशानियां महफूज की हुई हैं। हम लोगों ने वही 3 छोटे छोटे चने बराबर पत्थर खुद ले आओ। उसने साफ इनकार करके सबको स्क्वैश पेश किया और ट्रे टेबल पर रख दी। उनके तो ऐसा दर्द होता था मायरा, मानो कोई हथौड़े से ज़र पे लगा रहा हो पित्ते को। वो फिर से खाला की तरफ मतवज्जा हो गई थी। और अब्बू, आपको तो महज यूँ लगता होगा जैसे कोई शरारतन कंकरियाँ उछाल रहा हो। अशर ने फिर दखल दर माकूलात की थी और अब ये खाला अम्मी ने उसे खड़ा कर दिया। तुम उठो यहाँ से, अब बहुत हो गई। खाला के जब्त का पैमाना लिब्रेस हो गया था। अशर ने उठ ही जाने में आप फिर जाने, वरना मूड ना था अभी उठने का। आज अम्मी की बरसी थी। कल ही उसने कुरान शरीफ ख़त्म किया था। सुबह की नमाज के बाद बख्श कर वो अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई थी। उसने कदर खामोश से खालू अब्बू को भी देखा और खाला अम्मी की भीगी भीगी आंखें भी, और हस्बे साबिक हर साल की तरह कोई सवाल किए बगैर उनके गले से लगकर उनके आंसू पोंछ दिए थे। हर साल यही होता था, यूं ही गम ताज़ा हो जाया करता था, मगर वो रोती नहीं थी। मुझे सब पता है वो क्यों इतनी जल्दी इस दुनिया से चली गई थी। वो दिल ही दिल में कहती थी। वो ये भी जानती थी ये ज़ख्म अब तक क्यों भर नहीं पाते। ये भोले भाले लोग उससे अपने तय बहुत कुछ छुपाए हुए थे, मगर वो तो बहुत पहले ही सब कुछ जान चुकी थी। मगर वो उन मासूम लोगों को इम्तिहान में डालना नहीं चाहती थी। आज भी वो हस्बे मामूल रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो गई थी। खालू अब्बू और अशर को ऑफिस जाना था और अशर को यूनिवर्सिटी। वो टेबल पर नाश्ता लगाकर उन्हें बुलाने चल दी। ये अशहर कहाँ है? उसे बुलाओ। डाइनिंग टेबल पर अशर को ना पाकर खालू ने नाश्ता करते हुए अशर से कहा, तुम बैठो, मैं बुला कर लाती हूँ। अपना चाय का कप लिए उठ खड़ी हुई, दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई थी। वो नक्सक से तैयार से दुरुस्त खड़ा बाल बना रहा था। अब आप भी जाएं, आईना टूट जाएगा वरना। वो दरवाजे में खड़ी थी। उसने पलट कर उसे देखा। बड़ी संजीदा सी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। वो ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखकर उसके करीब आ गया। कुछ कहने के लिए मुंह खोला। आज नाश्ता नहीं करना है? इससे पहले वो बोल पड़ी, आज तो आप जल्दी आएंगे वापसी में, माँ हम आप ही को लेते आइएगा। कहते हुए वो पलटकर डाइनिंग रूम की तरफ चल दी। उसकी बात सुने बगैर उसे पता था उसने क्या कहना था। उससे वही हस्बे मामूल हर साल की तरह अम्मी की बातें। खाला अम्मी बताती थी उसे कि वो उसकी माँ को कितना आइडलाइज करता था और वो भी बकौल खाला के उससे बहुत मोहब्बत करती थी। वो जो भी बातें करता था उनकी अब तो ऊज को वो असबर हो चुकी थी, मगर ऊज का दिल चाहता था जो वो कहना चाहती है, जो वो बताना चाहती है अम्मी के बारे में, उसका जिक्र वो क्यों नहीं कर पाता। या काश वो उसे बता सकती। पूरी दोपहर यूं ही उदास उदास सी गुजरी थी। शाम में नहाकर वो टेरेस पर निकल आई थी। सामने ही छोटे से लॉन में खाला अम्मी और अशर बैठे बातें कर रहे थे। वो सर उठाकर सामने देखने लगी। शाम तो अब ढलने को थी। हर चीज़ पर धुंध सी छा रही थी। दरख्तों के साए गहरे हो रहे थे। वो इन गहरे होते दरख्तों पर नजरें जमाए ना न जाने क्या क्या सोचती चली गई। बाइक की तेज़ आवाज़ पर वो चौंकी थी। नीचे देखा, अशहर के साथ माहम उतर रही थी बाइक से। वो नीचे उतरने का सोचने लगी। फूफो ऊज कहाँ है? माहम सलाम करते हुए खाला से पूछने लगी। वॉशरूम में थी। जब मैं बाहर आई तो खाला की आवाज़ भारी भारी सी हो रही थी। उसने उससे तसल्ली देने वाले अंदाज में फूफी के हाथ दबाए और उसके कमरे की तरफ चली आई। वो कमरे में नहीं थी, वॉशरूम भी अनलॉक था। वो कमरे से निकलने को थी कि राइटिंग टेबल पर रखी सब्ज़ व सुनहरी जिल्द वाली डायरी ने बेइख्तियार ही उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई थी। उसने ना जाने क्यों बढ़कर डायरी उठा ली थी। अब्बू के नाम।
जो एक बार तुम आ जाओ तो अपने सब आंसू तुमसे गले मिलकर बहा दूंगी और फिर बिल्कुल उस तरह हो जाऊंगी जिस तरह अपने जन्म के दिन तुम्हारे बाजुओं में थी। माहम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। भीगती आंखें लिए वो न जाने कितनी मरतबा उसे पड़ गई थी। किसी ने डायरी उसके हाथ से ले ली थी। उसने तेज़ी से सर उठाया। अशहर की नज़रें उसकी लिखी नज़म को पढ़ रही थी। वो हथेली से आंखें रगड़ने लगी। अशहर हूँ। उससे बिल्कुल उसी तरह डायरी टेबल पर रख दी। वो अपने आप को इतना अकेला महसूस करती है। हम सबकी इतनी मोहब्बतों के बावजूद उसकी आंखें फिर से भीगी थी। ये तो वो कमी है माहम जो हम में से कोई भी पूरी नहीं कर सकता। उसने बहुत अपनायत से अपने से चंद महीने बड़ी कज़न को देखा जिसकी आंखें ऊज अहमद के दुख से भीग रही थी। अंकल फिर पलट कर आए क्यों नहीं, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, उसने लाइल्मी जाहिर की। अब रोना धोना बंद करो, वो है कहाँ, वो पूछने लगा। उसी को तो देखने आई थी, वो बताने लगी। मैं देखता हूँ ऊपर होगी। वो कमरे से निकलने लगा। अशहर, एकदम से माहम ने आवाज़ दी। वो पलटा था। उसे अकेला नहीं छोड़ना है। वो अशहर को देख रही थी कुछ कहती नज़रों से। हाँ, उसे अकेला नहीं छोड़ना है, उसने होंठ हिलाए बगैर जवाब दिया था। गोया एक इत्मीनान सा फैल गया माहम के चेहरे पर। बिल्कुल बहनों की तरह अजीज़ थी वो उसे। कमरे से निकलते समय माहम की सोचती हुई नज़र एक मरतबा फिर डायरी के उसी सफ़े पर थी। अरे यहाँ क्यों खड़ी हो? वो पता नहीं कब ऊपर आया था, उसे खबर ना हुई। बस नीचे ही जा रही थी। वो पलटकर उसे देखने लगी जो अब लाइटें ऑन कर रहा था टेरेस की। क्या हुआ? खैरियत? कदरे खामोश सी लगी थी। क्या होना है मुझे? वो पलकें झपका कर उसे देखने लगी। ऊज, जो कमी है वो तो रहेगी, मगर वक्त के साथ साथ उसकी शिद्दत कम होती चली जाती है। क्या हम सब के खुलूस और मोहब्बत के बावजूद तुम खाला जान की कमी इतनी शिद्दत से महसूस करती हो? वो आहिस्तगी से कहता उसके करीब आ गया। ऊज ने सर उठाकर देखा। कितनी अपनायत सी थी उसकी आंखों में उसके लिए। उसकी आंखें भीगने लगी उसके खलूस पर। आप कैसी बातें करते हैं अशहर भाई? यहाँ तो कभी भी महसूस नहीं होती जो होनी चाहिए। कुछ लोग तो मरकर अकेला छोड़ गए, कुछ जीते जी। वो कदरे तल्ख सी होगी। तुम अंकल को बहुत मिस करती हो? उसे कुछ जैसे कुछ याद आया। नहीं, मैं उन्हें बिल्कुल मिस नहीं करती। उसका लहजा बड़ा हमवार था। तुम झूठ बोल रही हो। डायरी का सफ़ा फड़फड़ाकर सामने आ गया। आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती, कदर ने नागवारी से कहकर उसे देखा। बस बस मैं कभी ये सोचती हूँ, क्या मैं उन्हें कभी याद भी नहीं आती होंगी? बावजूद कोशिश के ना अपने लहजे की उदासी पर काबू रहा था, ना नम होती आंखों पर इख्तियार। वो तुम्हें कैसे भूल सकते हैं लड़की? बस तुमने ही कभी दिल से याद नहीं किया। उसे रिलैक्स करने को उसने मोहब्बत से उसका सर हिलाया और हल्का सा मुस्कुराया। मैं उन्हें याद करना भी नहीं चाहती, सच से अंदाज में कहती। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और वो उसके अजीब से लहजे पर गौर करता रह गया। अशर भाई, मुझे मामू की तरफ ड्रॉप कर दीजिएगा रात में। खैरियत? कुछ नोट्स वगैरह लेने हैं माँ वापी से, और कल हमें ज़रा शॉपिंग को भी जाना है। रहोगी? हाँ, क्यों पूछ रहे हैं? खाला ने तो नहीं पूछा। वह हैरान सी देख रही थी। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? बेख्तियार ही वो ज़ेर लब बड़बड़ाया था। क्या कह रहे हैं? हिलते हुए लब ज़रूर देखे थे मगर सुन ना सकी थी। अम्मी अकेली हो जाएंगी ना, परेशानी होगी उन्हें। दिल ही दिल में उसे बेवकूफ़ का खिताब देकर बड़े इत्मीनान से चाय का कप उसके हाथ से ले लिया। सब कुछ तो करके जा रही हूँ, खाला अम्मी को परेशानी नहीं होगी कोई। कितने दिन का विजिट है? कल रात को वापसी है। पूरा एक दिन? उसने आंखें फैलाई थी। जी पूरा एक दिन। वो हल्के से हंसी। ब्लैक और वाइट प्रिंटेड सूट में ब्लैक कढ़ाई वाला वाइट कॉटन का दुपट्टा लिए वो हाथों से अपने बाल पीछे करती हंसती हुई एकदम से उसे बहुत अच्छी लगी थी। वो चाय पीना भूलकर उसे देखने लगा। चल रहे हैं ना? खाला को बता दूँ? वो पूछ रही थी। हाँ, रहने दो, मैं खुद बता देता हूँ। वो चौंक कर खड़ा हो गया। खाला अम्मी ने माहम के ज़रिए अशर के लिए उसकी रजामंदी पूछी थी और उसने साफ इनकार कर दिया था। क्यों, क्या ख़राबी है अशर में? माहम हैरत ज़दा रहेगी। बस नहीं करनी मुझे शादी वादी। टप टप ढेर सारे आंसू रुखसारों को तर कर गए थे। कोई मसला है? उसका जर्द चेहरा और बहते आंसू उसे परेशान कर गए थे। नहीं, बस आप मना कर दें। क्या कोई और? ना चाहते हुए भी माहम का ध्यान दूसरी तरफ चला गया। क्या कह रही है? वो इतनी बुरी तरह बदकी थी। सुन कर के माहम सख्त शर्मिंदा हो गई थी अपने उन तीन लफ्ज़ों पर। तो मुझे बताओ, तो बात क्या है? कुछ ना समझकर बड़े रसान से उसके ठंडे या हाथ थाम लिए थे। प्लीज़ माम, आप भी आप खाला को मना कर दें। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। वो हौले हौले कपकपा भी रही थी। माहम ने आपके तशवीश से उसे देखा। कोई वजह है? मुझे तो बताओ। बड़ा मोहब्बत भरा लहजा था उसका। उसकी आंखें भर आईं। कोई वजह नहीं, बस मुझे खौफ आता है, डर लगता है सबसे।
इन मर्दों से, इस रिश्ते से उसने आंसू बहाते हुए घुटनों में मुंह छुपा लिया। शादी के तस्वर से ही एक धुंधला सा ह्यूला आंखों के आगे आने लगता था, लड़खड़ाता हुआ, चीखता चिल्लाता, चीज़ें तोड़ता हुआ। आप सबको मना कर दें कि वो कुछ मत सोचे, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ, बस मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए सर छुपाने को। वो कह रही थी, क्या बकवास कर रही हो, पूरा घर ही तुम्हारा है, कभी किसी ने तुम्हें अलग समझा है जो ये तुम कह रही हो? फिर इस रिश्ते के बाद तो तुम्हारी पोजीशन और भी मजबूत हो जाएगी उस घर में। वो फिर से समझाने लगी। मजबूत? वो इस्तेज़ाई सी हंसी। इसी रिश्ते ने तो मेरी माँ के पैरों तले ज़मीन और जिस्म से जान खींच डाली थी। वो बगैर बोले सुर्ख आंखें लिए माहम को देखती रही। वो 2-3 दिन माहम उसे समझाती रही, फिर तंग आकर उसका इनकार खाला तक पहुँचा दिया। खाला चुप सी हो गई। खालू भी कुछ ना बोले। हाँ, उनके रवैयों में उसने कोई तब्दीली ना पाई थी, वैसे ही मोहब्बत भरा रवैया था। हाँ, अशहर खासा संजीदा सा नज़र आया था। ऐसा क्या नहीं था भाई में जो तुमने उन्हें रिजेक्ट कर दिया? अशहर को गोया हिसाब किताब पर उतर आया था। कोई ख़राबी नहीं थी। वो बड़ी संजीदगी से उसे देखने लगी। फिर 3 आंखें थी क्या उनकी? वो ज़ोर से बोला था। बकवास मत करो। जहाना से जगमगाती आंखें जहन के पर्दे पर एकदम से जगमगाई थीं। जब अब्बू ने तुम्हारे लिए उनसे पूछा था तो उन्होंने मारे खुशी के तकल्लुफ़न भी मना किए बगैर बड़े ज़ोर से हाँ की थी, और तुमने क्या किया? इनकार का पत्थर दे मारा। वो खासी नाराज़गी से कह रहा था। उनके लिए बहुत अच्छी सी लड़की लाएंगे, उनके सारे मलाल धुल जाएंगे, देखना। वो उसे तसल्ली देने लगी। बकवास मत करो ऊजापा, मुझे पता है वो क्या चाहते थे। वो तब क्या? मुझसे बदतमीज़ी से बात मत करो। वो भी बिगड़ गई। तुमने तो खूब तमीज़ दिखाई है ना? तुर्की बतुर्की जवाब मिला था। वो गहरा सांस लेकर उसे देखने लगी। उसकी आंखें सुर्ख सी हो रही थीं और उनमें गुस्से के साथ साथ अफसोस भी था। उसे बेख्तियार प्यार सा आ गया अशर पर। तो मुझसे नाराज़ मत हो इशी, मेरे प्यारे से भाई। अशर भाई तो बहुत अच्छे हैं। उसने उसके हाथ मोहब्बत से थाम कर रुखसारों से लगाए। फिर मना क्यों कर दिया? उसके लहजे की तुंदी भी ख़त्म होने लगी उसके मोहब्बत भरे अंदाज पर। बस मैं ही ख़राब हूँ जो तुम लोगों की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे पाई। उसकी आंखें भीग गई। तुम नहीं जानती हो जापा, उन्हें तुमसे कितनी। वो कोई इंकशाफ करने लगा था शायद। अशहर, इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, नज़दीक ही अशहर की सर्द आवाज़ कानों से टकराई थी और वो उछल पड़ा था। तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। बड़ी सादा सी नज़र डाली थी उसने अशहर पर, और अशहर ने सिर्फ सर उठाकर उसे देखा और खामोशी से कमरे से निकल गया। सॉरी यूज, बेवकूफ़ है ये। वो पलटकर दरवाजे की तरफ चल दिया। अशहर भाई, ऊज ने बेइख्तियार ही उसे पुकारा था। वो कुछ बोले बगैर उसकी तरफ घूमकर सवालिया नज़रों से देखने लगा। आप मुझसे खफा तो नहीं हैं? वो कदरे रुक कर बोली थी। जिन्हें खफा होने का हक है, जब वो ही खफा नहीं तो मैं कौन होता हूँ? उस पर एक नज़र डालकर वो पलट गया था। वो लम्हा भर को खड़ी रह गई थी। घर की फिज़ा में अजीब सी खामोशी रची हुई थी, जिसका सबब शायद वो खुद ही थी। खालामी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अपने कमरे में थी। वो अपने कमरे में बैठे बैठे थक गई तो बाहर निकल आई। आप खुद बात क्यों नहीं करती उससे? वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जा रही थी कि खाला के कमरे से गुजरते हुए उसके कदम खुद ब खुद रुक गए थे खालू की आवाज़ सुनकर। मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहती, कहीं वो कुछ गलत ना समझ बैठे। खाला की आवाज़ आई थी। आप बात तो करके देखें, कोई तो वजह होगी। फिर क्या कमी है अशहर में? खालू कह रहे थे। मैं उसे मजबूर नहीं करूँगी, बस जैसे वो खुश रहे। बस मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इस घर के अलावा भी कहीं जा सकती है। मैं उसे सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ, जैसे वो रहे। आपने देखा है ना, वो कभी खुलकर नहीं हंसी। मैं उसे ज़िंदगी से भरपूर हंसते देखना चाहती हूँ। खाला भराई हुई आवाज़ में कह रही थी। सॉरी खाला, अम्मी बाहर खड़ी ऊज की आंखें भर आई थी। मैं सोच रहा हूँ मैं खुद ऊज बेटी से बात करूँ। नहीं, आप रहने दें, मैं उसे किसी इम्तिहान में डालना नहीं चाहती। कहीं वो ये ना समझे कि आप उससे पालने पोसने का हिसाब मांग रहे हैं। खाला ने उन्हें मना कर दिया था। वो ढीले कदमों से आकर लाउंज की सीढ़ियों पर बैठ गई। वो क्या करे, किससे शेयर करे अपने दुख? कोई तो हो जिससे सब कुछ कहकर वो हल्की हो जाए, दिल के सारे बोझ सरका दे। कोई तो हो जो उसका खोया हुआ एतबार लुटा दे। उससे थक हार कर हाथों में सर दे दिया। उस घर के मकीनों की मोहब्बतें उसे गोया कुंद छुरी से ज़बा कर रही थी। उसे खाला खालू की मोहब्बत पर शक नहीं था, और वो अशर की कही हुई उस अधूरी बात का मतलब भी खूब समझ गई थी। और उसके इनकार के बाद अशर की गैर मामूली संजीदगी भी उसके दिल पर पड़े बोझ को कुछ और बढ़ा गई थी।
अरे भाई खैरियत तो है, यहाँ क्यों बैठी हो इस तरह? वो गालिबन अभी अभी ऑफिस से आया था, उसे इस तरह बैठे देखकर छटका था। कुछ नहीं, उठ रही हूँ। वो बड़ी खामोश सी नज़र आ रही थी। उसने देखा मगर कुछ पूछा नहीं। अम्मी ऊपर हैं? वो यूं ही पूछने लगा, टाई की नॉट खोलता। जी खालू भी हैं। वो खड़ी हो गई थी। खाना निकाल दूँ? वो पूछने लगी। तुम निकालो, मैं आ रहा हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ गया था। वो किचन की तरफ चल दी। माइक्रोवेव में सालन गर्म होने को रखा और चूल्हे पर तवा चढ़ाया। कीमा मटर हॉट पॉट में था। रेफ्रिजरेटर से सलाद की प्लेट निकालकर छोटी टेबल पर रखी और आटा निकालकर पेड़े बनाने लगी। तभी वो किचन में आ गया। अम्मी खा चुकी? बड़ी एहतियात से माइक्रोवेव से सालन निकालता हुआ पूछ रहा था। जी, उसने रोटी तवे पर डाली थी, जवाब देते हुए। अच्छा। रेफ्रिजरेटर से पानी की बोतल निकालकर टेबल पर रखी और खुद भी कुर्सी खींच कर बैठ गया। पर्पल प्रिंटेड सूट में बालों की सादा सी चोटी किए, घनी घनी पलकें झुकाए वो रोटी पकाने में मगर खासी पसमर्दा सी नजर आ रही थी। वो उसे देखने लगा। इनकार करके भी वो खुश नजर ना आती थी। न जाने क्या मसला था जो उसे परेशान कर रहा था। काश वो एतबार करना सीखे। ये सारे लोग उसके अपने थे, उसका भला चाहते थे। कितनी दफ़ा दिल चाहा एक दफ़ा पूछे तो सही, मगर फिर खुद को रोक लिया। वो क्यों खुद शेयर नहीं करती? कुछ एक गुस्सा सा था उसे। रोटी रूमाल में लपेट कर वो उसकी तरफ पलटी थी और वो अपनी प्लेट की तरफ मतवजा हो गया था। फौरन ही रोटी प्लेट में रखकर वो सामने ही कुर्सी खींचकर बैठ गई थी बगैर कुछ बोले। बहुत उलझी उलझी सी नज़र आ रही थी। एक नज़र उस पर डालकर उससे गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। अब क्या परेशानी है? वो ज़्यादा देर रह ना पाया था। कोई मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझता? वो एकदम ही सर उठाकर उसे पूछने लगा पूछने लगी। बताओगी तो समझेगा ना। किसी से अपना मसला शेयर करोगी तो वो तुम्हें मशवरा देगा ना। उसने एक लम्हे को रुक कर उसे देखा, फिर गोया कि जल कर बोला था। जिससे शेयर करना चाहती हूँ वो तो लगता है। वो कहते कहते रुक गई। किससे शेयर करना चाहती हो तुम? वो सर उठाकर उसे देखने लगा। कितने अजीब से तासुरात एकदम से उभरे थे उसके चेहरे पर, फिर आंखों में छुपी बेचैनी सी थी। एक लम्हे को वो हैरान हुई थी। है कोई? फिर बेख्तियार ही एक मध्यम सी हंसी उसके होंठों को छू गई थी। एक नज़र उसने हंसती हुई ऊज अहमद पर डाली, फिर ग्लास टेबल पर रख दिया। तो फिर आओ शेयर करो। उसकी तरफ ज़रा सा झुककर वो बड़े मजबूत लहजे में गोया हुआ था। कितना पुरयकीन लहजा था उसका। वो अपने चेहरे पर बिखरते हुए ढेरों रंग समेटने में नाकाम हो गई थी। उस दिन शाम में महामौरनम आ गई थी। दूसरे दिन क्योंकि छुट्टी थी लिहाजा उसके स्टार पर रुक भी गई थी। उन दोनों ही की फरमाइश पर आज चाइनीज़ बनाया था उसने। फिर अनम के कहने पर अशर रात के खाने के बाद उन्हें आइसक्रीम खिलाने ले गया था और वापसी पर मीठे पान भी दिलाए थे। अनम को भूख ज़रा ज़्यादा लगती थी। उस वक्त भी ऊज और माहम किचन समेट रही थी और वो टीवी देखते हुए कीनू खा रही थी मुसलसल। कितना खाओगी? अशर जो वहीं बैठा हुआ था चुप न रह सका जब उसने चौथे कीनू की तरफ हाथ बढ़ाया तो। तुम्हें क्या तकलीफ है? अपनी फूफो का दिया खा रहे हैं। अनब ने छिड़क दिया था बुरी तरह। दोनों तकरीबन हम उम्र ही थे लिहाजा बनती कम थी। फट जाओगी लालची कव्वे की तरह। वो जल गया था। कव्वे तो तुम लग रहे हो मुझे। कितनी देर से इस टोकरी पर तुम्हारी नज़र है, देख रही हूँ। उसने कीनों की टोकरी अखबार से ढांप दी। मोटू ढोलक। वो बड़बड़ा कर टीवी की तरफ मतवजा हो गया। वो उठकर किचन की तरफ चल दी। यार मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है आज। वो किचन के दरवाजे पर खड़ी कह रही थी। छत पर चल रही हो टहलने? ना भाई। ओज खौफजदा सी हो गई। रात के 12 बजे छत पर कमरों ही में टहल लो। मशवरा देकर वो फिर से बर्तन जगह पर रखने लगी। मैं तो रात को छत पर जाने का सोचती हूँ ना, तो कुछ धुंध में लिपटे सफ़ेद लंबे लंबे पूरे सरार साए और रोने पीटने और हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं मुझे। माँ कह रही थी। अच्छा अच्छा चुप रहो। अनम खौफजदा सी हो गई। नीचे ही टहल लेती हूँ। वो सचमुच टहलती हुई लाउंज तक गई थी कि फ़ोन की बेल बजने लगी। इस वक्त किसका फ़ोन है? बराबर में ही फूफा का कमरा था। उनके डिस्टर्बेंस के ख्याल से पहली ही बेल पर फ़ोन उठा लिया था। हेलो हेलो अशर हैं? सलाम के बाद किसी ने पूछा था। जी हैं, बुलाती हूँ। ऊजापा उसे बुलाए मत, मैं आ रहा हूँ हलीम लेकर। उसे भी इनवाइट किया था मगर आप लोगों के यहाँ आज मेहमान आए हुए थे शायद। उसने माजरत कर ली थी। मेहमान तो अब भी हैं। हलीम का सुनकर मुंह में पानी आ गया था, पेट में भी गुंजाइश पैदा होने लगी थी। इसका मतलब है आप लोग अभी सो नहीं रहे? दूसरी तरफ से मुसर्रत भरे लहजे में पूछा गया था। कहाँ, अभी तो सब जाग रहे हैं और मैं भला सोते में कैसे बोल सकती हूँ? उसने चारों तरफ नज़र घुमाकर फूफो का, अशर का और अशहर भाई का कमरा देखा। हर कमरे का दरवाज़ा सख्ती से बंद था। घड़ी की तरफ नज़र की। 12 बजने में 5 मिनट थे। बस मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। अशर से कहीं गेट पर खड़ा रहे, मैं रुकूंगा नहीं।
کچھ لوگ ہوں گے میرے ساتھ۔ اچھا اچھا، اس نے فون رکھ دیا۔ اشر اس نے بڑے آرام سے اس کا دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اونگتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ کیا ہے؟ تمہارے کسی دوست کا فون آیا تھا، وہ آ رہا ہے۔ اس وقت اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ گھڑی دیکھی ہے، 12 بج چکے تھے۔ تم کہہ دیتی میں سو رہا ہوں، وہ بگڑ گیا تھا۔ کہا تھا مگر اس نے سنا نہیں، شاید بڑے اطمینان سے جھوٹ بولا تھا۔ کون ہے؟ کیوں آ رہا ہے؟ وہ جو جلایا سا لگ رہا تھا، نام نہیں بتایا، کہہ رہا تھا رکوں گا نہیں، اشر سے کہیں گیٹ پر کھڑا رہے۔ وہ کہہ رہی تھی کوئی بتا کر اغوا کرنے آ رہا ہے کیا ہمارے اشر کو؟ اونچ کی آواز آئی تھی۔ سین تو ایسا ہی کھینچ رہی ہے۔ ماہم ساتھ تھی۔ اس سے پہلے کہ بیچارہ اشر کچھ کہتا، باہر گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ یہ تو عمیر کی گاڑی کا ہارن ہے، جلدی جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ بیل بھی بجا دے۔ انم نے اسے دوڑایا تھا۔ ابو نہ اٹھ جائیں، فکر مندی سے کہتا ہوا وہ نیچے بھاگا تھا۔ چلو ہم کچن میں چلیں، انم کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ اب کیا کھاؤ گی؟ سب دیگچیاں الٹی پڑی ہیں، ماہم نے گھورا۔ حلیم کھائیں گے؟ حلیم آ رہی ہے، اس نے مزے سے بتایا اور کچن کی طرف چل دی۔ حلیم کہاں سے آ رہی ہے؟ دونوں حیران ہو گئی تھیں۔ اشر وہی تو لینے گیا ہے، اس نے ہنستی ہوئی پوری بات بتا دی۔ تم بڑی بدتمیز ہو۔ دونوں اسے گھور کر رہ گئی، مگر حلیم کا سن کر پانی ان کے منہ میں بھی بھر آیا تھا۔ لہٰذا جب اشر حلیم کی دیگچی کے ساتھ اندر کچن میں آیا تو کچن کی چھوٹی گول ٹیبل پر سفید چینی کی نفیس سی گہری پلیٹوں، چمچوں، جگ، گلاس اور روز پیٹل ٹیشو باکس کے ساتھ پیپسی کا بھی اہتمام تھا۔ مجھے پتا تھا تم ہی نہ دیدی ہوگی فون پر۔ وہ اوج آپا کو سمجھ رہا تھا۔ حلیم کی دیگچی ٹیبل پر پٹک کر اس نے انم کو گھورا۔ چھوڑو بھائی، تم بھی آ جاؤ، دیکھو کتنی اچھی خوشبو آ رہی۔ مجھے نہیں شوق اپنے معدے پر خواہ کا بوجھ ڈالنے کا۔ وہ منہ بنا کر کچن سے نکل گیا۔ برآمدے کی لائٹ بند کرتے جانا، پیچھے سے ماہم کی آواز آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اوج گلاس ہاتھ میں لیے ریفریجریٹر سے پانی کی باٹل نکال رہی تھی۔ بالکل قریب ہی سے اشر کی آواز آئی تھی اور وہ بری طرح خوفزدہ ہو کر اچھلی تھی کہ گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر چکنے فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ سناٹے میں گلاس ٹوٹنے کی آواز سے اچھا خاصا شور ہوا تھا، ساتھ ہی گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی تھی حلق سے، اور پھر وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کیا ہوا اوج؟ ادھر وہ دونوں بھی فک ہو گئی، مڑ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ یہ تم لوگ آدھی رات کو کچن میں کیا کر رہی ہو؟ اشر کی غصیلی آواز دوبارہ سنائی دی تھی اور تینوں کی جان میں جان آئی تھی۔ تو یہ آپ تھے؟ توبہ، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ گہرا سانس لے کر اوج نے سر اٹھایا تھا۔ گنہری پلکوں والی سیاہ آنکھوں سے اب بھی ذرا ذرا سا خواب جھانک رہا تھا۔ فیروزی کپڑوں میں ملبوس سنہری رنگت کسی قدر زرد سی ہو گئی تھی۔ رخساروں کو چھوتی ہوئی سیاہ بالوں کی موٹی سی لٹ ایک لمحے کو اٹکی تھی۔ اس کی نظر دوسرے ہی لمحے گہرا سانس لے کر وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ کون ہے؟ کون سے پہر کا کھا رہی ہو؟ وہ انم سے پوچھ رہا تھا کچن سے نکلتے ہوئے۔ تیسرے پہر کا، بڑے اطمینان سے اس نے جواب دیا۔ تم کیوں آئے تھے کچن میں؟ ماہم پوچھ رہی تھی۔ سونے جا رہا تھا، یہاں کی لائٹ جل رہی تھی، وہی بند کرنے آیا تھا۔ تم کیوں فرش نشین ہو کر رہ گئی ہو؟ اسے جواب دے کر اس نے فرش پر بیٹھی اوج کو دیکھا جو ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھ رہی ہوں، وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اب سونے کی کرو، 1:30 بج رہا ہے۔ وہ باہر نکل گیا تھا کہتا ہوا۔ ہائی 1:30 بج گیا، تم دونوں ٹیبل سمیٹو، میں جب تک یہ فرش صاف کرتی ہوں۔ ماہم نے فرش پر بکھری کرچیوں کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم کیوں نہیں اٹھ رہی؟ فرش صاف کر کے وہ انم کی طرف پلٹی تھی جو ویسے ہی بیٹھی تھی اب تک، جبکہ اوج برتن سمیٹ رہی تھی۔ میں نے زیادہ کھا لیا ہے، اٹک اٹک کر بتایا۔ اٹھا نہیں جا رہا۔ مزید انکشاف۔ گود میں اٹھا کر کون لے کر جائے گا تمہیں؟ موٹو، اور بھر لو تھوڑا سا، ماہم نے اسے گھورا۔ میں تو گھسیٹنے کو بھی تیار نہیں ہوں، اوج نے بھی معذوری ظاہر کر دی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ صبح تم دونوں کی یہ بہن مری پڑی ہو، وہ بیچارگی سے کہہ رہی تھی۔ تمہارے نیچے دب کر میں ضرور مر جاؤں گی بہن، تم زندہ رہو گی، بے فکر رہو۔ ماہم ذرا متاثر نہ ہوئی تھی مگر اوج ڈر گئی تھی۔ ہمت کرو، اوج نے کیبنٹ سے کاربینہ کی شیشی اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ فون کی بیل کب سے بج رہی تھی؟ لانچ سے قریب تر اس کا کمرہ تھا، سو اسی کو اٹھ کر آنا پڑا۔ ہیلو اسفندیار صاحب ہیں؟ نمبر بتا کر کسی نے بڑے شائستہ لہجے میں خالو کا پوچھا تھا۔ آپ کون صاحب ہیں؟ لہجہ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا مگر بوجھ نہ پائی۔ بیٹا پلیز انہیں بلا دے، بڑا ملتجیانہ سا انداز تھا۔ وہ ہولڈ کرنے کا کہہ کر خالو جان کو بلا کر اپنے کمرے میں چل دی۔ کافی دیر بعد جب دوبارہ لاؤنج میں آئی تو انہیں بڑی فکر مندی سے ہاتھوں میں سر تھامے دیکھ کر بے اختیار ہی ان کی طرف چلی آئی۔ کیا ہوا خالو جان، کس کا فون تھا؟ وہ فکر مندی سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ کسی کا تھا بیٹا، سر اٹھا کر وہ ہلکے سے مسکرائے تھے، اسے لگا اسے ٹال گئے ہیں۔
तुम्हारी खाला कहाँ है, वो पूछने लगे। अंदर है, अपने कमरे में बुला दूँ, वो पूछने लगी खड़ी होती हुई। नहीं, रहने दो, मैं खुद जा रहा हूँ। वो उठकर खड़े हुए। वो मुख्तलिफ सोचों में घिरी काफ़ी देर वहीं खड़ी रही। फिर कतई उसकी समझ में कुछ ना आया जब दूसरे ही दिन शाम को सबकी मौजूदगी में उसको अशहर अहमद के नाम की अंगूठी पहना दी गई। खाला, उसने एहतजाज के लिए मुंह खोला था। देखो बेटी, यूँ समझ लो कि मैंने तुम्हारे साथ आज तक जो कुछ भी किया उसका बदला चुका रही हो तुम। खाला जान का अंदाज ना समझ में आने वाला था, लेकिन बस अब कुछ मत कहना, तुम कुछ नहीं जानती, ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए है मेरी जान। खाला जान ने नम आंखों से देखते हुए उसकी भीगती पलकें चूम ली थी और उसे कुछ भी कहने से रोक दिया था। गोया सब बहुत खुश थे, मगर एक परेशानी सी थी जो उसने मामू, मुमानी और खाला खालू के चेहरों पर देखी थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अशर कहाँ था, उसे खबर नहीं थी। लाएं अम्मी, मैं पहनाऊंगा अंगूठी। अशर ने खाला के हाथ से मखमली टिबिया ले ली थी। सबसे ज़्यादा खुशी तो जैसे उसी को थी। तुमसे हो जाएगी, अनम हंसी। आओ फिर तुम्हें पहना दूँ। वो तो बगैर सोचे समझे बोलने का आदी था, बोल गया था, मगर अनम पर घड़ों पानी पड़ गया था। सब हंस पड़े थे। हल्की सी मुस्कुराहट अशर के चेहरे पर लहराई थी, मगर वो स्पॉट चेहरा लिए बैठी रही। जादू की अंगूठी है क्या जो पहनकर पत्थर की हो गई? पड़ोसी तो अंगूठी पहनते ही मुस्कुराने लगे, वरना तो महीने भर से फिटे मुंह बने फिर रहे थे। अनम की सरगोशी अशर के कानों तक भी पहुंची थी और उसने बड़ी मुस्कुराती नज़रों से अपने पहलू में बैठी मैरून कपड़ों में मलबूस नक्सक से दुरुस्त ऊज अहमद पर नज़र डाली थी, मगर वो खपा खपा सी नज़र आई थी। उसने मुस्कुराकर नज़रों का जाविया बदल लिया। ऊज की मंगनी क्या हुई? अशहर अहमद से एहतजाज के तौर पर उसके सारे कामों से हाथ खींच लिया था उसने। सबसे ज़्यादा शामिल तो बेचारे अशर की आई हुई थी। यार, ये मेरे कपड़े तो प्रेस कर देना। रोज़ाना ऑफिस से आने के बाद अशर उसे अपने कपड़े थमा देता। 4 दिन तो अशर ने बगैर माथे पर कोई शिकन डाले उस काम के अलावा भी 2-3 काम कर दिए, मसलन चाय देना और नाश्ते के लिए बुलाना, मगर फिर 5वें दिन उसने साफ मना कर दिया। उन्हीं से करवाएं जो पहले करती थी। उसने कपड़े वहीं इस्त्री स्टैंड पर पटक दिए। रहने दो, मैं कर लूँगा। उसने कपड़े समेट लिए थे। क्या सिलाई भी सीख ली है? ये आपकी इन 3 शर्ट्स के बटन टूटे हुए हैं, ये भी लगा लेंगे? वो पूछ रहा था। अम्मी से लगवा लूँगा। अम्मी ने बहू ढूंढकर चश्मा तोड़ दिया है, और आपको पता है चश्मे के बगैर उन्हें मैं और आप भी साफ नज़र नहीं आते। कर लूँगा कुछ, वो झुंझुला गया था। उनसे क्यों नहीं कहते? वो पूछने लगा। क्या ज़रूरत है? उसने घूरा। फिर ऊपर वालों को खबर कर दे, उन्हें शायद इस सारे किस्से का पता नहीं है। उसने बिखरे हुए कपड़ों की तरफ इशारा किया। छोड़ो यार, तुम जाओ अपना काम करो। उसने सारे कपड़े हाथों में समेटे और खड़ा हो गया। एक और हल है। वो काफ़ी परे हटकर खड़ा हो गया था। वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। अंगूठी जादू की लगती है, वापस कर दे, सब सही हो जाएगा, कहकर हंसता हुआ वो अम्मी के कमरे की तरफ मुड़ गया। भाई की परेशानी भी तो दूर करनी थी। दूसरे दिन जब वो ऑफिस से घर आया, कमरे में दाखिल हुआ तो सारा कमरा जैसे जगमगा रहा था, और सामने ऊज उसकी अलमारी खोले इस्त्री शुदा कपड़े हैंगर में डाल रही थी। कमरा देखकर आंखें और उसे देखकर दिल बहुत खुश हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुशदिली से अशहर ने उसे सलाम किया था। पलट कर उसे देखा, सर हिलाया और फिर से अपने काम में मगन हो गई। ब्रीफ के साइड टेबल पर रखता वो उसकी तरफ आ गया। वो हनूज अपने काम में मसरूफ़ रही। तुमने खामखा तकलीफ़ की, मैं खुद कर लेता, वो आस्तीन के बटन खोलता हुआ कह रहा था। जी, इससे पहले भी आप ही सब कुछ किया करते थे। बहुत तपा हुआ जवाब आया था अलमारी के अंदर से। वो लाजवाब हो गया। अच्छा, तुम ये रहने दो, मैं अम्मी से लगवा लूँगा। अलमारी के पट बंद करके वो जब सीधी हुई तो हाथ में धागे का डब्बा था और हाथ में उसकी शर्ट्स। तभी देखकर बोला, क्यों अभी जी नहीं भरा आपका? डांट खिलवा के उससे सर उठाकर उसे घूरा था बुरी तरह। जी तो अभी बहुत सी बातों से नहीं भरा है, उसने एकदम ही उसकी आंखों में झांका था, बड़े ज़ोमैनी अंदाज में कहते हुए। लो, दिमाग ही ख़राब हो गया। वो पलके झपकाकर बेइख्तियारी रुख मोड़ गई थी। पहले बदन की गर्द झाड़ लीजिए, फिर इश्क फरमा लीजिएगा। दस्तक के साथ अशर अंदर आया। वो उसे घूर कर देखने लगा। कोई आया हुआ है? अब्बू आपको बुला रहे हैं मिलने के लिए, वो उससे कह रहा था। मुझसे? कौन है? वो हैरतज़दा सी थी। हमें क्या पता? अभी मुझसे एना मारिया कास्त्रो की आंखों में पाई जाने वाली खसूसियात पैदा नहीं हुई कि मैं हर चीज़ के आर पार देख सकूं। मुझे तो अब्बू ने लाउंज में आकर कहा था। अच्छा, वो डिब्बा साइड पर रख कर कमरे से निकल गई। आपको पता है कौन आया हुआ है उस वक्त? उसके बाहर निकलते ही वो भाई के करीब आया था। कौन? वो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था। शहरियार अंकल, उसने गोया धमाका सा किया था।
पर्दा हटाकर बड़े मगन से अंदाज में वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी, मगर अंदर दाखिल होते ही जैसे कमरे की छत ज़मीन पर आ गिरी थी। आप माहो साल बड़ी सरहद से गुजरे थे, मगर वो अपने बाप को पहचान सकती थी। ऊज मेरी बेटी। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े थे। नहीं नहीं, उसकी स्याह आंखों में बेहद बना ख्वाब सिमट आया था। उनके बड़े हुए हाथों में ढेर सारे नोट नजर आए थे, जिनसे सुरख सुरख लहू टपक रहा था उसकी माँ का। मैं नहीं जाऊँगी, ये मुझे भी बेच देंगे, ख्वाब से स्याह पड़ते चेहरे के साथ कहती। अब्बू का बाजू झटकती वो बहुत तेज़ी से पलटी थी और दरवाजे में खड़े अशर से बुरी तरह टकराई थी और बेख्तियार उसका बाजू मजबूती से ही थाम लिया था, जो उसके अल्फाज सुनकर दम बखुद खड़ा खालू जान को देख रहा था, जिनकी पेशानी उसकी बात सुनकर अरक आलूद हो गई थी। वो क्या कह रही थी? अपने हवास जगह पर लाते हुए उसने फिर से अहमद के अल्फाज अपने जहन में दोहराए, फिर संभल कर लरसती कांपती जर्द पड़ती ऊज को संभाला और करीबी सोफे पर बिठा दिया। उनके हाथों में जो रुपये हैं उस पर कितना खून लगा हुआ है। मम्मा का खून है सारा। मम्मा भी मर गई, रुपया भी नहीं मिला आपको। ऊज बहुत ज़ोर से झिंझोड़ा था अशर ने उसे। वो तो उसके हवास ही ख़त्म किए दे रही थी, ना जाने क्या क्या बोलकर। हाँ, अब मेरी बारी है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी अशर भाई। आपको अल्लाह का वास्ता मुझे रोक लें। उससे अब तक उसका बाजू बड़ी सख्ती से दबोचा हुआ था। पूरा जिस्म उस शिद्दत से कँपकपा रहा था कि अशर की समझ में ना आया कि वो उसे किस तौर नॉर्मल करे। कहीं नहीं जा रही, तुम आराम से बैठो। वो मुश्किल अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकाला था। तब भी लाउंज के दरवाजे पर खड़ी खाला अम्मी और पर ऊज की नज़र पड़ी थी, जो सन्नाटे की कैफियत में खड़ी उसे तके चली जा रही थी। खाला अम्मी वो उनकी तरफ लगी थी। आप पहचानती हैं ना इन्हें? इन्होंने मेरी माँ को जुए में हार दिया था। इनके हाथों में इतने सारे रुपए हैं, मगर देखिए कितना खून है उन पर, है ना? आप देख रही हैं ना, ये सारा खून मम्मा का है, सारे का सारा। वो बोल रही थी यूं कि आवाज़ के साथ साथ उसका सारा बदन बुरी तरह कँपकपा रहा था। अल्लाह के लिए खालू जान, इनसे कह दे ये चले जाए, वरना उसने शिद्दत से दुखता हुआ अपना सर हाथों में थामने की कोशिश की थी, मगर फिर बेहोश होकर उनके बाजों में ढह गई थी। एकदम से एक सन्नाटा सा फैल गया था उसके बेहोश होते ही पूरे ड्राइंग रूम में। अशर ने सर उठाकर खालू को देखा था। वो यकदम ही नजरें चुरा गए थे। अम्मी पर नज़र डाली, वो ऊज अहमद पर झुकी हुई थी और उनके होंठ बड़ी तेज़ी से हरकत कर रहे थे और उतनी ही तेज़ी से उनके आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे। तभी उसकी नज़र कॉर्नर के सोफे पर बैठे शहरयार अहमद पर पड़ी थी, जो उस मुसाफिर की तरह बैठे थे जिसकी जमा पूंजी कोई रास्ते में ही लूट कर ले गया हो। आंसू की तार दर की तार उसकी आंखों से बह रहे थे। वो आहिस्ती से उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर को फ़ोन करो। पहले न जाने किस खौफ के तहत खालू जान ने उसे रोका था। उसकी आंखें कितनी सुर्ख हो रही थी और वजूद पर कैसा सन्नाटा सा तारी था। उन्हें खौफ आने लगा। उनकी बात नज़रअंदाज करके वो चलता हुआ शहरयार अहमद के सामने जा खड़ा हुआ। क्या किया था आपने खाला जान के साथ? ड्राइंग रूम में उसकी बेहद सर्द आवाज़ गूंजी थी और हाथ उनके गिरेबान तक पहुँचे थे। शोर था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। कोई ज़ोर ज़ोर से उसके कानों में चिल्ला रहा था, डैडी ने मम्मा को जुए में हार दिया। उसने हैरत से सुना। ये उसकी अपनी आवाज़ थी जो उसके रोए रोए से निकल रही थी। बस उस आवाज़ को ज़बान का रास्ता नहीं मिला था। अरसा 9 साल से ये आवाज़ उसके अंदर ही चकराती रही थी। उस पर यह तकलीफ दे इंकशाफ उस वक्त हुआ था जब वो मैट्रिक की तालिबा थी। उसके नाना एहतशाम अहमद की 3 ही औलादें थीं। 2 बेटियां मायरा और सबसे छोटी फ़ायज़ा, और एक बेटे हशाम जो फ़ायज़ा से बड़े और मायरा से छोटे थे। मायरा बड़ी थी। उनकी शादी उन्हीं के तायाजाद असफंद से हुई थी, जिनसे उनके 2 लड़के अशहर और अशर थे, जबकि हशाम अहमद की शादी उनकी पसंद से हुई थी। उनकी 2 बेटियां माहम और अनम थी। सबसे छोटी फ़ायज़ा थी, जो एक तकरीब में शहरयार अहमद की वालदा को पसंद आ गई थी। वो थी इतनी खूबसूरत कि एक दफ़ा जो देखे तो वो देखता ही रह जाए। शहाबी रंगत पर स्याह बड़ी बड़ी घरी पलकों वाली हसीन आँखें, सितवा नाक, किताबी चेहरा और छोटे से धाने में गुलाबी फूलों से होठ, उस पर हुस्न इखलाक, उसकी इजाफी खूबी, जो एक दफ़ा मिलता था गर्विदा हो जाता था। शहरयार अहमद के वालदा ने जो उनको देखा तो बस एहतशाम अहमद की दहलीज ही पकड़ ली और उस वक्त तक ना छोड़ी जब उन्होंने हाँ ना कह दी। यूँ सरसरी सी तहकीकात के बाद फ़ायज़ अहमद की शादी शहरयार अहमद से हो गई। शहरयार अहमद इकलौते थे बेहद लाडले। ज़िद्दी कम उम्र सी फ़ायज़ा घबरा कर रह गई। फिर एक दिन जब उन पर यह इंकशाफ हुआ कि वो पीते पिलाते भी हैं और जुआ भी खेलने के आदी हैं, तो
وہ सन्नाटे में आ गई। बड़ा खाता पीता घराना था, तकरीबन पूरी दुनिया घूमे थे शहरयार अहमद। दिल के भी खुले थे, पैसे की कोई तंगी ना थी, मगर शौहर के इस कभी फेल की वजह से वो मुझकर रह गई। एक दिन हिम्मत करके सास से शिकवा किया तो वो नज़रें चुरा कर रह गई कि हर चीज़ तो उनके इल्म में थी। तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, अब इस घर की इज्जत हो तुम्हारे हाथ में है। तुम कोशिश करो तो वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। वो गुमसुम सी हो गई थी। जब इतने साल तक माँ बाप उन्हें ना सुधार सके तो उनकी क्या हैसियत कि वो उस मंझे हुए जवारी और शराबी से ये दोनों काम छुड़वा लेती। बहरहाल उन्होंने मैके में कुछ ना बताया, शौहर को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिशें करती रही। सास ससुर साथ थे उनके। कभी कभार नशे में शहरयार अहमद हाथ तक उठाने से गुरेज ना किया करते थे। वो खुद ही सब कुछ सहती रहती। उन्हीं दिनों ऊज पैदा हुई थी। बेटी की पैदाइश पर शहरयार अहमद ने खुशी का इजहार किया था। वो कुछ मुतमईन सी हो गई थी। उनके घर वाले भी इत्मीनान से थे कि ये बेटी अपने घर में खुश है। बेटी की पैदाइश के बाद शहरयार अहमद का वही पुराना रूटीन था। रात गए लड़खड़ाते हुए कदमों से घर आकर रोज़ ही कोई ना कोई हंगामा करना, वरना घर ही ना आना। वो घर आ जाते तब भी फायज़ अहमद की जान मुसीबत में रहती, ना आते तब भी वो हलकान रहती। बहरहाल यूँ ही 15 साल गुजर गए। माँ बाप मुतमईन थे कि बेटी ऐश की ज़िंदगी गुजार रही है। इन्हीं गुजरते सालों में सास ससुर और फायज़ा के वालिदैन उन्हें अकेला छोड़ गए थे। जब तक सास ससुर थे वो अपने आप को फिर भी बेहद महफूज ख्याल करती थी, मगर उनके जाने के बाद तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो बेसरो सामान हो गई हो। ऊज मैट्रिक में आ गई थी। घर के हालात उसकी नज़रों से पोशीदा नहीं थे। हालांकि माँ ने उसे कुछ भी ना बताया था, मगर वो खुद से सब कुछ जान गई थी। कभी भी माँ से कोई सवाल करके उसे इम्तिहान में ना डाला था। बेहद ज़हीन थी और अपनी माँ की तरह हसीन। फ़ायज़ा उसे खुद पढ़ाया करती थी। डैडी से उसे बेहद खौफ आता था। दिन में तो वो उसे नज़र ही नहीं आते थे, मगर रात में उनके कमरे से आने वाली चीखों पुकार पर अक्सर अपना बेडरूम लॉक कर लिया करती थी। सब कुछ सही होता। फ़ायज़ा खामोशी से अपने कामों में मगन नजर आती। सुबह सब कुछ सही होता। फ़ायज़ा खामोशी से अपने कामों में मगन नजर आती और डैडी अपने ऑफिस चले जाते। काश रात ना आया करे या दिन बहुत लंबा हो जाया करे। रात होते ही उसका मासूम जहन बेख्तियार दुआ करने लगता था। उसके मैट्रिक के इम्तिहान ख़त्म हुए अभी एक ही हफ्ता गुजरा था। वो रात में डैडी के आने के बाद भी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। तभी मम्मा के बेडरूम से डैडी के दहाड़ने की आवाज़ आई थी, साथ ही मम्मा की चीख। वो घबरा कर खड़ी हो गई। क्या हुआ है? मम्मा को बेख्तियार ही वो उनके कमरे की तरफ दौड़ी थी। यह आपने क्या किया? मम्मा के तो जैसे बैन करने की आवाज़ें आ रही थी। वो खौफजदा सी होकर ज़रा सा पर्दा हटाकर झांकने लगी। मम्मा कारपेट पर सफ़ेद चेहरा लिए यूं बैठी हुई थी जैसे उनके जिस्म से किसी ने खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया हो। तुम्हें जाना होगा, डैडी बड़ी खशमगी आवाज़ में कह रहे थे। आप इतना गिर जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपको अपनी जवान होती हुई बेटी का भी ख्याल नहीं आया कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा? लोग उसकी माँ को, उसके बाप को किन अल्फाज में याद करेंगे? वो बहुत टूटी हुई आवाज़ में कह रही थी। वो धड़ धड़ करते दिल के साथ ज़मीन पर बमुश्किल कदम जमाए खड़ी थी। शट अप! मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अगर 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 आप जीत जाते तो क्या वो अपनी बीवी आपको बख्श देता? नहीं, ज़रा सी भी उसमें गैरत होती तो अपनी बीवी को गोली मारकर खुद को भी ख़त्म कर लेता। वो नफ़रत भरे लहजे में कह रही थी। आंसू थे कि बहे चले जा रहे थे उनके गालों पर। तुम बकवास बंद करो, तैयारी करो जाने की। किस कदर बेहिस था उसका बाप। ऊज खुश्क आंखें लिए उस शख्स को देखी गई जिसे खुदा ने शायद गलती से उसका बाप और उसकी माँ का शौहर बना दिया था। बकवास तुम बंद करो शहरयार अहमद। फ़ायज़ा अहमद बिफर कर खड़ी हो गई थी। मैंने पूरे 16 साल गुजार दिए कि शायद मेरा सब्र रंग ले आए और आप ठीक हो जाएं। मैंने हर तरह से निभाने की कोशिश की अपनी बच्ची की खातिर, मगर अब नहीं। मैं नहीं चाहती कोई मेरी बेटी से ये कहे कि उसकी माँ ये उस माँ की बेटी है जिसे उसके बाप ने जुए में हार दिया। क्षण से उसके अंदर जैसे बहुत कुछ टूट गया था। अब क्या करोगी तुम? बड़ा तंजिया सा अंदाज था उनका। क्या ज़रा सी भी गैरत नहीं बची तुम में शहरयार अहमद? यकीन नहीं आता कि तुम उन्हीं माँ बाप की औलाद हो जो मुझे ब्याह कर इस घर में लाए थे। कुछ उनकी तरबियत की हुर्मत रख लो या मुझे गोली मार दो। बंद करो अपनी तकरीर। डैडी ने आगे बढ़कर उनकी गर्दन दबोच ली। ऊज के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। घबरा कर उसने पर्दा छोड़ा था और भागती हुई लाउंज में आई थी। मामू के घर का नंबर बमुश्किल तमाम डायल करते हुए वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी डैडी आकर उसकी गर्दन पर हाथ रख देंगे।
فون کر کے بڑی خاموشی سے باہر آئی تھی تو دیکھا ڈیڈی مین گیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ وہ مما کے کمرے کی طرف آ گئی۔ مما، اس نے دروازے میں کھڑی مما کو آواز دی تھی۔ 1 2 3، تیسری آواز پر مما نے چونک کر اسے دیکھا اور موبائل ہاتھ سے رکھ دیا۔ تم جاگ گئی؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چومی تھی بڑے کھوئے کھوئے انداز میں۔ آپ ابھی سوئی نہیں؟ اس نے بھی ان کا پردہ رکھ لیا تھا۔ سونا تو اب ہے بیٹا، بڑا پراسرار سا انداز تھا ان کا۔ وہ خوف زدہ سی ہو گئی۔ تو سو جائیں، کچھ دیر اپنی بیٹی کے پاس تو بیٹھ جاؤں، اسے جی بھر کے تو دیکھ لوں۔ وہ ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی اس کو گلے لگا کر۔ آپ مت روئیں مما، وہ بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مرنا تو کسی اور کو ہے بیٹا۔ آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہوتی چلی گئی تھی۔ تمہاری خالہ کو میں نے فون کر دیا ہے، وہ تمہیں آ کر لے جائیں گی۔ تم انہیں تنگ مت کرنا، وہ آ رہی ہوں گی، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ گاڑی کی آواز آئی تھی، شاید ڈیڈی آئے تھے واپس۔ مما نے ایک دفعہ پھر اسے کس کر پیار کیا اور اس کی پیشانی چومی۔ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، جب تک تمہاری خالہ کے ہاں سے کوئی نہ آ جائے تم اپنا دروازہ لاک ہی رکھنا۔ وہ اسے خود اس کے کمرے تک چھوڑنے آئی تھی۔ آپ مجھے اکیلے چھوڑ کر مت چلی جائیے گا مما، وہ خوفزدہ سی ہو گئی تھی مما کے انداز پر۔ اے اللہ مجھے معاف کر دینا، زیر لب کہتے ہوئے مما نے اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا تھا۔ بس پھر تھوڑی ہی دیر میں پورے محلے میں شور مچا ہوا تھا کہ مسز شہریار احمد نے خودکشی کر لی ہے۔ اس نے پتھرائے ہوئے چہرے کے ساتھ یہ خبر سنی تھی اور سکتے میں آ گئی تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ اس کی ماں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہے تو شاید اسے تھوڑا اور دیکھ لیتی۔ اپنی ماں کی موت کے بعد ان کی خواہش کے مطابق وہ خالہ امی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی۔ حالانکہ ماموں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اب ان کے ساتھ رہے، مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے تو ماموں کے پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس دن کے متعلق بس یہی کہا دونوں کا کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا، جس پر گھبرا کر اس نے انہیں فون کر دیا تھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی، ماں نے خالہ کو ساری بات بتا دی تھی، کیونکہ مما کے بعد اس گھر میں کبھی بھی شہریار احمد کا تذکرہ نہ ہوا تھا۔ اس کی ماں کے مرنے کے بعد سنا تھا کہ وہ یہ ملک ہی چھوڑ گئے تھے۔ جیسے ہی اشہر کے ہاتھ شہریار احمد کے گریبان تک پہنچے، انہوں نے اس کے سوال کا جواب دیے بغیر بڑی خاموشی سے جیب سے خط نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا، جس پر نظر ڈالتے ہی وہ گمسم ہو گیا تھا۔ بائی پوسٹ یہ نظم انہیں ہیوسٹن میں موصول ہوئی تھی۔ اس ننھی سی معصوم نظم میں نہ جانے کیا جادو تھا جس نے شہریار احمد کے پتھر دل میں بیٹی کی محبت جگا دی تھی۔ چھوٹی سی اس نظم میں کتنی محرومیاں چھپی ہوئی تھی وہ اب محسوس کر پائے تھے۔ ننھے منھے لفظوں سے پھوٹتی بیٹی کی محبت کی خوشبو جانے کیسے ان تک پہنچی تھی۔ اتنی ڈھیروں ڈھیر محبت ایک دم سے دل میں امڑی تھی کہ وہ پاکستان جانے کو بےتاب ہو گئے تھے، سب کچھ بھول کر کہ وہاں کیا کر کے آئے تھے۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تھی۔ پہلے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں پر ہے، یہ سب یہاں کیوں جمع ہے۔ پھر یکایک ہی کچھ دیر پہلے کا واقعہ حافظے کے پردے پر روشن ہو گیا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئے تھے؟ ان کی ہمت و جرأت پر وہ حیران تھی۔ دوسرے خالہ خالو کے حوصلے کی داد دی تھی کہ کس طرح انہوں نے اس شخص کو اتنے بڑے جرم کے بعد بھی اپنے گھر کی دہلیز پار کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ان کے اوپر تو اس کی ماں کے خون کے حساب کے ساتھ ساتھ اس کے سہمے ہوئے بچپن اور گھٹی سی زندگی کا بھی حساب نکلتا تھا۔ کاش وہ اس کے سہم و خوف کا مزہ چکھ سکتے جو اس نے اور اس کی ماں نے ان 16 سالوں میں لمحہ لمحہ چکھا تھا۔ وہ کیسے بھول جائے وہ وقت جب انہوں نے اس کی ماں پر زندگی اور موت دونوں ہی حرام کر دی تھی، اور ماں نے حرام زندگی کی بجائے حرام موت کو ترجیح دی تھی۔ حرام موت مرنا آسان نہیں ہوتا، بڑی گناہ گار موت ہوتی ہے، مگر اس کی ماں کے پاس تو بس یہی ایک رستہ تھا جسے نہ جانے کتنے کٹھن مراحل کے بعد اس نے منتخب کیا ہوگا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو بیٹی؟ خالہ جان کی بھیگی بھیگی سی آواز پر اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اس کے بال سہلا رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی بولے بغیر دائیں بائیں نظر کی تھی۔ اشر، ماہم، انم، ماموں، ممانی سب ہی تھے سوائے خالو جان کے۔ اشر کمرے کے دائیں طرف بنی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا، سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ کیسی ہو تم؟ ماہم بے اختیاری اس پر جھک آئی تھی، بھیگی بھیگی پل کے لیے۔ ٹھیک ہوں، اشارے سے کہتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اب اسے آرام کرنے دو۔ ممانی سب کو باہر لے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرہ خالی محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے پڑی کرسی پر اشر کو براجمان پایا۔ وہ بڑی گہری سوچوں میں غرق معلوم ہوتا تھا۔ نظر غالباً کارپیٹ کے ریشوں میں الجھی ہوئی تھی اور پیشانی پر گہری سوچوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ بے اختیاری اسے دیکھتی چلی گئی۔ صرف ایک ڈیڈی کی ذات نے اسے مرد و عورت کے اس خوبصورت رشتے سے اتنا متنفر کر دیا تھا کہ وہ اشر کی اپنے لیے پسندیدگی محسوس کرنے کے باوجود اس پر اعتماد نہ کر سکی۔
اس کی پلکیں بھیگنے لگی، تبھی نگاہوں کی تپش یا کسی اور احساس کی گرفت میں آ کر اس نے سر اٹھایا تھا۔ اوج نے دیکھا اس کی آنکھیں بڑی سرخ ہو رہی تھی، نظریں ملتے ہی ڈھیروں آنسو پلکوں کی بار توڑ کر رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ اب کیسی ہو؟ اس نے اٹھ کر اس کے آنسو صاف کر دیے۔ اس نے سر ہلایا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ ہوں لیٹی رہو، اس نے اسے اٹھتے دیکھ کر ٹوکا۔ خالو جان کہاں ہیں؟ چکراتے ذہن کو ایک مرکز پر لانے کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی۔ یہ رات 11 بجے تمہیں کیا کام آ پڑا ہے ان سے؟ انہیں ڈسٹرب مت کرو۔ غیر معمولی سنجیدہ لہجہ تھا۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ چلے گئے؟ اس نے تھوڑا سا رک کر پوچھا تھا خوفزدہ انداز میں۔ کیوں انہیں چلے جانا چاہیے تھا؟ اس نے بغور اس کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے الٹا سوال کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس کا سفید پڑتا چہرہ نظروں سے نہ چھپا رہ سکا۔ وہ آئے کیوں ہیں؟ خالو جان نے انہیں اپنی دہلیز کیسے پار کرنے دی؟ وہ سب کچھ تو جانتے تھے، پھر کیوں انہوں نے؟ یہ سب تمہاری خواہش پر ہی ہوا تھا، سر سے لہجے میں کہتے ہوئے بات کاٹ دی تھی اس نے۔ میری خواہش پر؟ اس کا رنگ اٹھ گیا تھا۔ قدرتی سی بات ہے، خون کے رشتوں کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، ان سے محبت بھی قدرتی سا عمل ہے، دوسرے چاہے کتنا بھی کر دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ زبان پر آ گیا تھا۔ مجھے ان سے محبت نہیں ہے، وہ زور سے چیخ پڑی تھی۔ وہ تمہارے باپ ہیں۔ اس نے یوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی گویا کچھ جتا رہا ہو۔ وہ میرے باپ ہیں، انہوں نے مجھے کیا دیا ہے؟ سہما ہوا بچپن اور فکروں سے بھری زندگی۔ انہوں نے مجھے نہیں سکھایا کہ باپ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، اور نہ مجھے پتہ ہے کہ باپ بیٹیوں سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دیں وہ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ سسک پڑی تھی۔ تو تم نے انہیں بلایا کیوں تھا؟ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بڑی خفگی سے بولا تھا۔ جی؟ وہ رونا دھونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ سنو، تمہارے ساتھ جو زبردستی کی گئی اس میں عثمان اور محبت کا بڑا دخل تھا جو امی ابو کو تم پر تھا، لیکن سب سے اہم وجہ وہ فون تھا جو شہریار انکل نے پاکستان پہنچنے کے بعد کیا تھا۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ اس وقت کسی کو علم نہیں تھا کہ تم نے انہیں کوئی خط لکھا ہے۔ بس ان کے اس فون سے خوفزدہ ہو کر امی نے ابو کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ قدم اٹھائیں، باوجود اس کے کہ تم اس رشتے کے لیے تیار نہ تھیں۔ یہ سب کہتے ہوئے بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے ان کو نہیں بلایا۔ وہ ایک دم سے رو پڑی تھی۔ پھر سے میں انہیں کیسے بلاؤں گی جن کا تصور مجھے آج بھی خوفزدہ کر دیتا ہے؟ اس شخص کو جس نے میری ماں کو پورے 16 سال خون کے آنسو رلایا، میں انہیں کیوں بلاؤں گی؟ کون سے ایسے لمحات یاد کروں جن کی گرفت میں آ کر میں چاہوں گی کہ وہ یہاں آ جائیں؟ میرے ہاتھ میں تو ان کی محبت و تحفظ کا کوئی ایک جگنو نہیں ہے۔ میں تو اس وقت کو بھی یاد کر کے خوفزدہ ہو جاتی ہوں جب وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ خالہ میری ماں کی بہن نہیں، میری ماں ہے، اور میرے باپ وہ نہیں خالو جان ہے جنہوں نے میری تربیت کی۔ باپ تو وہ ہوتا ہے جو سر پر ہاتھ رکھتا ہے، کھلے ہوئے سر کو ڈھانپتا ہے، چادر نہیں کھینچتا ہے سر سے، نہ پیروں تلے سے زمین۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے میری مما کو؟ اس کی گلگیر آواز شہریار احمد نے بس یہیں تک سنا تھا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مجھے ابو نے سب کچھ بتایا ہے، مت دہراؤ دوبارہ۔ اس کی بات کاٹ کر بے اختیار ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں بلایا؟ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ انہیں میں نے بلایا تھا، تبھی دستک دے کر مہم اندر آ گئی تھی۔ آپ نے؟ وہ حیران سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری اوج، آج تم نے میری وجہ سے اتنی ذہنی تکلیف اٹھائی۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اب تک شاید تمہاری محبت میں، لیکن مجھے کیا پتا تھا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جس دن بڑی پھوپھو کی برسی تھی میں تمہارے کمرے میں چلی گئی تھی، تم نہیں تھی وہاں، مگر میں نے تمہاری ڈائری میں وہ نظم ابو کے نام پڑھی تو مجھے یوں لگا تمہیں ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ پھر میں نے کسی کو کچھ بتائے بغیر نظم تمہارے نام کے ساتھ پوسٹ کر دی تھی، یہاں کے فون نمبر اور ایڈریس کے ساتھ۔ آئی ایم سوری اوج، وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ اوج کو یاد آیا وہ نظم واقعی اسے بھی بہت پسند تھی، ایک ننھی منھی سی خواہش یا حسرت جسے بڑے معصومانہ انداز میں قلم بند کیا گیا تھا۔ اس چھوٹی سی نظم نے اسے اتنا انسپائر کیا تھا کہ اس نے اسے اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیا تھا۔ وہ گمسم سی ماہم کو تکے گئی، کیسے وہ ان سب کی محبتوں کا قرض اتار پائے گی؟ وہ بے اختیار ہی ماہم سے لپٹ گئی۔ آپ کا کیا قصور ہے؟ یہ تو آپ کی محبت تھی۔ اس نے ماہم کے آنسو پونچھ دیے تھے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ماہم اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ساتھ میں اشر کو بھی کھڑا کر دیا۔ تم اب آرام کرو اور سنو، انکل شہریار کی طرف سے بھی مطمئن ہو جاؤ، انہیں اصل بات پتہ چل گئی اور پھر ہمارے بڑے موجود ہیں ہماری فکریں اور پریشانیاں سمیٹنے کے لیے۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور کمرے سے نکل گئی۔ سنو، جاتے جاتے وہ کمرے کے دروازے پر رکا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ سب کو تم سے محبت ہے، یہ بتاؤ تمہیں کس سے محبت ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ آپ سے، بے اختیار منہ سے نکلا، پھر ہونٹ دانتوں تلے دبایا تھا گھبرا کر۔ نہیں ہے، جملہ پورا کیا۔ اس کے انداز پر وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔
اب تو تم مجھ سے بھی کر لو کوشش کر کے، یہ کوشش فضول ہوگی اب، وہ مایوسی سے کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذرا سا رکی، میرے ساتھ زبردستی نہیں کی گئی تھی، اس نے آرام سے کہہ کر چادر منہ تک تان لی تھی۔ ہاں، باپ تو وہی ہوتا ہے جو سر پر ہاتھ رکھتا ہے، کھلے ہوئے سر کو ڈھانپتا ہے، سر سے چادر نہیں کھینچتا، نہ پیروں تلے سے زمین۔ تم تو اس قابل ہی نہیں تھے شہریار احمد کہ خدا تمہیں اس منصب پر فائز کرتا کہ تم بیٹی کے باپ بنتے۔ وہ تو اوج احمد کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے وہ اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں۔ اس کے چہرے پر موجود خوف، نفرت نے انہیں شرمندگی کے گہرے گڑھے میں دفن کر دیا تھا۔ اسی وقت انہیں یہی ملنا تھا۔ بدلے میں ایک چھوٹی سی نظم کے ذریعے اللہ نے ان کے دل میں بیٹی کی محبت جگائی تو تھی، مگر بیٹی کے دل میں نہیں۔ پھر انہیں محروم بھی رکھنا تھا، کچھ سزا تو دینی تھی دنیا میں بھی۔ انہوں نے آہستگی سے کاغذ کا وہ پرزہ اپنی جیب سے نکالا اور ٹپ ٹپ کئی آنسو اس ننھی سی خواہش پر بکھر گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔